قناعت ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جس انسان کا دل اللہ کی عطا پر راضی ہو جائے وہ تھوڑی چیز میں بھی بے سکون ہونے کے بجائے اطمینان پاتا ہے۔ علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور جہالت سے بڑھ کر کوئی محتاجی نہیں، کیونکہ علم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق سمجھاتا ہے، جبکہ جہالت انسان کو اپنے ہی فیصلوں میں محتاج بنا دیتا ہے۔ جو شخص اپنے راز کو چھپا کر رکھتا ہے وہ اپنے معلومات پر اختیار رکھتا ہے، لیکن جب انسان اپنے راز کو دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو پھر اس کے پھیلنے کا اختیار مکمل طور پر اس کے پاس نہیں رہتا۔ صبر بہادری کی ایک قسم ہے، کیونکہ مشکل حالات میں خود کو سنبھالے رکھنا آسان نہیں ہوتا، اور جو شخص پریشانی کے وقت ثابت قدم رہتا ہے وہ اپنے نفس پر مضبوطی حاصل کرتا ہے۔ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو انسان اپنے باتیں کم کر دیتا ہے، کیونکہ سمجھدار شخص ہر بات میں اپنی رائے ظاہر کرنے کے بجائے یہ جانتا ہے کہ کہاں بولنا فائدہ مند ہے اور کہاں خاموش رہنا بہتر۔ انسان کی زبان اس کے دل کا آئینہ ہوتا ہے، اس لیے بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے الفاظ کسی کے دل کو سکون دیں گے یا اسے تکلیف پہنچائیں گے۔ دوست وہ نہیں جو صرف خوشی کے وقت تمہارے ساتھ کھڑا رہے، بلکہ سچا دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی تمہارا ساتھ دے اور تمہیں غلط راستے سے بچانے کی کوشش کرے۔ انسان کی قدر اس کے دولت اور ظاہری شان سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے علم اور کردار کے اچھے عمل سے ہوتی ہے، کیونکہ دولت انسان کے پاس رہتا ہے مگر کردار انسان کی پہچان بن جاتا ہے۔ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا بڑی طاقت ہے، کیونکہ دوسروں پر حکومت کرنا آسان ہو سکتا ہے لیکن اپنے نفس پر قابو پانا زیادہ مشکل اور زیادہ قیمتی ہے۔ جس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اسے درست کرنے کی کوشش کرے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو اپنی غلطی کو جانتے ہوئے بھی صرف اپنی انا کی وجہ سے اسے ماننے سے انکار کرتا ہے۔ کسی انسان کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرو، کیونکہ بہت سے لوگ ظاہر طور پر کمزور دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو بڑے بڑے لوگوں میں نہیں ملتی۔ جو شخص دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے اسے پہلے اپنے عیب دیکھنے چاہیے، کیونکہ اپنی اصلاح میں مشغول انسان کو دوسروں کی کمزوریوں پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو بہت سی ایسی چیزوں کے پیچھے دوڑا سکتی ہے جن کی حقیقت عارضی ہے، اس لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا کی ضرورت پوری کرے مگر اپنے دل کو دنیا کا غلام نہ بنائے۔ انسان کو اس وقت تک اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ اسے سمجھ نہ لے، کیونکہ سنی سنائی بات پر فیصلہ کرنا کبھی کبھی انسان کو ایسی غلطی تک پہنچا دیتا ہے جس کی تلاش مشکل ہو جاتی ہے۔ خاموشی میں بھی ایک حکمت ہے، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں اور ہر بات کا جواب الفاظ سے دینا بھی عقل مندی نہیں۔ بعض موقع پر خاموش رہنا ہر بہترین جواب بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی خواہشات کو ہر وقت پورا کرنے میں لگا رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی آزادی کھو دیتا ہے۔ اصل آزادی یہ ہے کہ انسان خواہش کا غلام بننے کے بجائے اسے قابو میں رکھے۔ انسان کو اپنے ماضی کی غلطیوں میں ہمیشہ کے لیے قید نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان سے سبق لے کر آنے والی زندگی بہتر بنانی چاہیے، کیونکہ عقل مند شخص اپنی غلطی کو انجام نہیں بلکہ سبق بناتا ہے۔ جس دل میں تکبر پیدا ہو جائے وہاں دوسروں کی خوبی دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عاجزی انسان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہو سکتی ہے جس سے وہ خود بھی سیکھ سکتا ہے۔ انسان کو اپنے دوست کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے،
क्योंकि इंसान के करीबी साथी उसकी सोच, आदत और किरदार पर गहरा असर डालते हैं और अच्छा साथी जिंदगी को बेहतर रास्ता दिखाता है। दुनिया में इंसान जो कुछ जमा करता है वह सब हमेशा उसके साथ नहीं रहता, इसलिए सबसे बेहतरीन सरमाया वह नेकी, अमल और अच्छा किरदार है जिसका फ़ायदा इंसान के बाद भी बाकी रहता है। जिस शख्स ने अपने वक्त की कद्र पहचान ली, उसने अपनी ज़िंदगी की कद्र पहचान ली, क्योंकि गुजरे हुए वक्त को दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती है। जिस काम का वक्त गुजर जाए उसे सिर्फ अफसोस करते रहने से वापस नहीं लाया जा सकता है। अक्लमंद इंसान गुजरे हुए वक्त से सबक लेता है और बाकी वक्त को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। किसी इंसान की अक्ल को उसकी बातों की कसरत से नहीं, बल्कि उस मौके पर पहचानो जहां उसे सही फैसला करना हो, क्योंकि असल समझ मुश्किल वक्त में जाहिर होती है। जो शख्स अपनी बात को दलील के बगैर दुरुस्त समझता है वह सीखने के दरवाजे खुद बंद कर लेता है। अक्लमंद इंसान हक बात सुनकर अपनी राय बदलने में शर्म महसूस नहीं करता। इंसान को अपनी ज़बान से निकली हुई बात का जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि अल्फाज वापस नहीं आते और बाज़ औक़ात एक छोटी सी बात भी दो इंसानों के दरमियान बड़ी दूरी पैदा कर देती है। जिस शख्स ने अपने दिल को लोगों की तारीफ़ और बुराई दोनों से आज़ाद कर लिया, वह अपने काम को ज़्यादा खुलूस के साथ कर सकता है, क्योंकि उसकी कोशिश लोगों की पसंद के बजाय सही काम पर कायम रहती है। लोगों की तारीफ़ मिलने पर अपने आप को कामिल न समझो और तनकीद सुनकर ख़ुद को बेकदर न समझो, बल्कि अपने अमल को देखो और उसमें हकीकतन क्या अच्छा है और क्या गलत है महसूस करो। जो शख्स दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाश करता है उसका दिल तंग नहीं रहता, क्योंकि खैर बांटने से इंसान के अंदर मोहब्बत बढ़ती है और दूसरों की भलाई उसे अपनी भलाई महसूस होने लगती है। किसी इंसान की इज़्ज़त उसके लिबास या दौलत से नहीं, बल्कि उसके किरदार से करो, क्योंकि ज़ाहिरी चीज़ वक्त के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा किरदार इंसान की असल पहचान बन जाता है। अगर किसी के पास कम हो तो उसे हकीर न समझो, क्योंकि रिज़्क़ की कमी इंसान की इज़्ज़त की कमी नहीं होती और दौलत की ज़्यादती इंसान को खुद ब खुद बेहतर इंसान नहीं बना देती। जो शख्स अपनी ज़रूरत और ख्वाहिशात में फ़र्क समझ लेता है वह ज़िंदगी के बहुत से बोझ से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि हर ख्वाहिश पूरी करना ज़रूरी नहीं और हर ज़रूरत को छोड़ देना भी दुरुस्त नहीं। इंसान को दूसरों के सामने अपनी हर नेमत का इजहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर शख्स का दिल एक जैसा नहीं होता और समझदारी यह है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में एहतियात भी रखे। किसी इंसान की आजमाइश उस वक्त ज़्यादा होती है जब उसे कोई फ़ायदा मिल सकता हो जो दूसरों के हक़ में हो। वहाँ अपने फ़ायदे को छोड़कर हक़ का साथ देना किरदार की मजबूती है। जो शख्स अपने से बड़े का एहतराम और अपने से छोटों पर शफ़क़त करता है उसके अंदर माशरे के साथ रहने की वह खूबी पैदा हो जाती है जो सिर्फ़ इल्म या दौलत से हासिल नहीं की जा सकती। अपने बड़ों की अच्छी बात को गौर से सुनो और छोटों के साथ नरमी करो, क्योंकि तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखाता है और नरमी दिलों को करीब करने का रास्ता बनाती है। जिस शख्स ने किसी के साथ अच्छा सलूक किया हो उसकी नेकी को भूल जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि एहसान को याद रखना इंसान के अंदर शुक्र और वफ़ादारी पैदा करता है। जो शख्स सिर्फ़ अपनी गलतियों का दिफा करता रहता है वह अपनी इस्लाह का मौका खो देता है। बेहतर यह है कि गलती सामने आए तो उसे समझो, कबूल करो और आइंदा उससे बचने की कोशिश करो। इंसान को किसी काम में सिर्फ़ इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि दूसरे लोग भी वही कर रहे हैं, क्योंकि हर रास्ता हर इंसान के लिए दुरुस्त नहीं होता और समझदारी अपने मकसद को देखकर
कदम उठाने में है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से सीखना चाहिए जो उससे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, क्योंकि अपनी एक ज़िंदगी के तजुर्बे से ज़्यादा फ़ायदा दूसरे के तजुर्बात से सबक लेकर भी हासिल किया जा सकता है। जो शख्स अपने बुज़ुर्गों के तजुर्बों को नज़रअंदाज करता है वह कई ऐसी गलतियां दोबारा कर सकता है जिनसे दूसरे लोग पहले ही गुजर चुके हुए हों। अक्लमंद माजी के तजुर्बे को रास्ता बनाता है। अगर किसी काम में कई रास्ते सामने हों तो उस रास्ते को इख्तियार करो जिसमें हक, भलाई और अंजाम की बेहतरी ज़्यादा हो, क्योंकि सिर्फ आसान रास्ता हमेशा बेहतरीन रास्ता नहीं होता। इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत के वक्त अच्छे लोगों से मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि एक दुरुस्त मशवरा कभी कभी इंसान को ऐसे नुकसान से बचा लेता है जिसका अंदाज़ा उसे अकेले नहीं हो पाता। जो शख्स अपने फ़ैसलों में सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात को देखता है वह हकीकत से दूर हो सकता है, लेकिन जो शख्स हक़ के नतीजे और ज़िम्मेदारी को सामने रखता है उसके फ़ैसलों में वज़न आ जाता है। इंसान के लिए बेहतरीन रास्ता वह है जिसमें उसका अक़ल उसके इल्म के मुताबिक हो, उसकी नीयत दुरुस्त हो और उसके फ़ैसले से किसी बेगुनाह का हक़ जाया न हो। इंसान की दानाई सिर्फ़ उस बात में नहीं कि वह कितना जानता है, बल्कि इसमें है कि वह अपनी लाइल्मी पहचानने और जिस बात का इल्म न हो उसे जानने का दावा न करे। जो शख्स हर बात में अपनी राय को आखिरी समझता है वह नई हकीकत से दूर हो जाता है। अक्लमंद इंसान अच्छी बात जहाँ से मिले उसे कबूल करने में शर्म महसूस नहीं करता। किसी काम की खूबसूरती सिर्फ़ उसके शुरू करने में नहीं बल्कि उसे दुरुस्त तरीके से मुकम्मल करने में है, क्योंकि अधूरा काम नीयत अच्छी होने के बावजूद अपना पूरा फ़ायदा नहीं दे पाता। जो शख्स दूसरों के काम को आसान बनाने की कोशिश करता है वह अपने लिए भी लोगों के दिलों में जगह बनाता है, क्योंकि इंसान की बेहतरीन पहचान यह है कि उससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। इंसान को अपनी कामयाबी पर इतना खुश नहीं होना चाहिए कि वह उन लोगों को भूल जाए जिन्होंने उसके सफ़र में किसी न किसी तरह उसका साथ दिया, क्योंकि मंजिल तक पहुँचने में कई लोगों की मदद शामिल होती है। जिस शख्स ने किसी के साथ भलाई का मौका खो दिया उसे सिर्फ़ अफसोस नहीं करना चाहिए बल्कि अगले मौके पर बेहतर अमल की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अक्लमंद माजी की कमी को मुस्तकबिल की इस्लाह बनाता है। जो शख्स किसी के हक़ में गवाही दे उसे अपनी मोहब्बत या दुश्मनी को दरमियान में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गवाही की असल कद्र उस वक्त है जब इंसान अपनी पसंद के ख़िलाफ़ भी सच बयान करे। इंसान को किसी के बारे में फ़ैसला करने से पहले उसके हालात को समझना चाहिए, क्योंकि एक ही अमल मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ माने रख सकता है और ज़ाहिरी सूरत हमेशा पूरी हकीकत नहीं बनाता। जिस शख्स को लोगों की मालूमात की ज़िम्मेदारी दी जाए उसे अपने लिए वही आसानी नहीं ढूंढनी चाहिए जो दूसरों के लिए मुश्किल बन जाए, क्योंकि ज़िम्मेदारी में इंसाफ सबसे अहम चीज़ है। किसी इंसान की इज़्ज़त उस वक्त भी करो जब वह तुमसे इख्तलाफ करे, क्योंकि इख्तलाफ का मतलब यह नहीं कि दूसरे इंसान की इज़्ज़त और हक़ भी ख़त्म हो गई है। जो शख्स इख्तलाफ के बावजूद इंसाफ की बात कबूल कर लेता है वह अपने नफ्स को एक बड़ी कमज़ोरी से बचा लेता है, क्योंकि अपनी बात पर कायम रहना हमेशा हक़ पर कायम रहने के बराबर नहीं होता। इंसान को अपने फ़ैसले में ऐसी बात को तरजीह देना चाहिए जिसका फ़ायदा ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि बड़ी भलाई वह है जिसका असर सिर्फ़ एक शख्स तक महदूद न रहे। जो शख्स लोगों के दरमियान अपनी ज़ात को मरकज़ नहीं बनाता वह ज़्यादा आसानी से खैर का काम कर सकता है, क्योंकि हर मामले को अपने फ़ायदे से जोड़ने वाला इंसान दूसरों के हक़ को भूल सकता है।
किसी इंसान की खुशी छीन कर अपनी खुशी बनाना हकीकी कामयाबी नहीं है, क्योंकि ऐसी कामयाबी के पीछे किसी दूसरे के दिल का दुख शामिल होता है और इंसाफ उसकी इजाज़त नहीं देता। अगर किसी काम में तुम्हें अपने फ़ायदे और दूसरों के हक़ में से किसी एक को चुनना पड़े तो हक़ को तरजीह देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि माल या फ़ायदा दोबारा मिल सकता है, लेकिन किरदार का नुकसान आसानी से पूरा नहीं हो सकता। इंसान को अपने से कमज़ोर लोगों के साथ इस तरह पेश आना चाहिए जैसे वह चाहता है कि ताकतवर लोग उसके साथ पेश आएं, क्योंकि हालात बदलने में देर नहीं लगती। जो शख्स दूसरों की ज़रूरियात को समझता है वह माशरे के दुख को बेहतर तौर पर महसूस करता है, और जो सिर्फ़ अपनी जात में महदूद रहता है वह बहुत सी ऐसी हकीकतों से बेखबर रह जाता है जो उसके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। किसी की मदद करते वक्त उसकी ज़रूरत को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर शख्स को एक जैसी मदद की ज़रूरत नहीं होती, और दुरुस्त मदद वह है जो वाकई मुश्किल को कम कर दे। इंसान को किसी के साथ ऐसा मामला नहीं करना चाहिए जिससे वह खुद अपने लिए पसंद ना करे, क्योंकि अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि इंसाफ भी है। जो शख्स अपने कौल और अमल में फ़र्क पैदा करता है वह आहिस्ता आहिस्ता लोगों के एतमाद खो देता है, इसलिए अपनी बात को अमल से सच्चा साबित करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी इंसान से वादा करो तो उसे अपनी यादाश्त पर न छोड़ो, बल्कि उसे पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि वादे की कद्र उसी वक्त जाहिर होती है जब उसे पूरा करने में कुछ मुश्किल पेश आए। जो शख्स किसी की अमानत में कमी करता है वह सिर्फ दूसरों का हक नहीं घटाता, अपने किरदार में भी एक ऐसी कमी पैदा कर देता है जिसका असर उसके बाकी मालूमात पर पड़ सकता है। इंसान को किसी दूसरे की चीज़ को उसके इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे की मिल्कियत का एहतराम करना भी इंसाफ और अच्छे मामले का हिस्सा है। जो शख्स लोगों के हुकूक अदा करने को अपनी जिम्मेदारी समझकर ज़िंदगी गुजारता है वह अपने लिए दुश्मनी कम करता है और एतमाद ज़्यादा पैदा करता है, क्योंकि इंसाफ इंसान की ताल्लुकात को मजबूत बना देता है। इंसान को किसी के साथ ताल्लुक़ बनाते वक्त सिर्फ़ उसके मौजूद हालात नहीं देखने चाहिए बल्कि उसके अखलाक और किरदार को देखना चाहिए, क्योंकि हालात बदल सकते हैं मगर अच्छा किरदार इंसान की असल पहचान रहता है। जिस शख्स को किसी की कमज़ोरी मालूम हो जाए उसे दूसरों के सामने बयान करके अपनी बड़ाई साबित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी की कमज़ोरी छुपाना अपने किरदार की मजबूती की अलामत है। अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने अपनी परेशानी बयान करे तो उसकी बात को मामूली समझकर न टाल दो, क्योंकि कभी किसी इंसान को मसले के हल से पहले एक ऐसे दिल की ज़रूरत होती है जो उसकी बात को समझ सके। जो शख्स किसी की ज़रूरत के वक्त उसके काम आता है वह उसके दिल में ऐसी जगह बना लेता है जो सिर्फ़ खूबसूरत अल्फाज से हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि अमल की याद अल्फाज से ज़्यादा देर तक रहती है। इंसान को अपने मामलात में इतना ही खर्च करना चाहिए जितना उसकी हालत इजाज़त दे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च इंसान को ऐसी परेशानी में डाल सकता है जिससे बचना पहले ही मुमकिन था। जो शख्स अपने पास मौजूद नेमत को सही जगह इस्तेमाल करता है वह उस नेमत का शुक्र अदा करता है, क्योंकि शुक्र सिर्फ ज़बान से कहना नहीं बल्कि अता की हुई चीज़ को दुरुस्त मकसद में इस्तेमाल करना भी है। इंसान को दूसरों के सामने अपनी हाजत जाहिर करने से पहले अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करना चाहिए, क्योंकि मखलूक के दरवाज़े महदूद हैं लेकिन अल्लाह के रहमत के दरवाज़े वसी हैं। जिस शख्स को कोई भलाई करने का मौका मिले उसे मामूली समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा छोटा सा नेक अमल इंसान के लिए उस वक्त तक बड़ा बन जाता है जब उसकी नीयत सच्ची हो।
किसी इंसान के साथ ताल्लुक़ सिर्फ़ फ़ायदे की बुनियाद पर न रखो, क्योंकि फ़ायदा ख़त्म होने के साथ ख़त्म होने वाले ताल्लुक़ में वह मजबूती नहीं होती जो खुलूस और वफ़ादारी और अच्छे अखलाक से पैदा होती है। जो शख्स अपने अजीज़ों के साथ मुश्किल वक्त में भी इंसाफ करता है, वह अपने किरदार की सच्चाई साबित करता है, क्योंकि असल इंसाफ वहाँ मुश्किल हो जाता है जहाँ मोहब्बत और हक़ एक दूसरे के सामने आ जाएं। अगर तुम किसी से इख्तलाफ करो तो उसकी बात सुनने की और समझने की कोशिश भी करो, क्योंकि मुमकिन है कि तुम दोनों के पास हकीकत का कुछ हिस्सा और मुकम्मल बात सिर्फ गौर करने से सामने आए। इंसान को अपने दिल में किसी के लिए ऐसा बोझ नहीं रखना चाहिए जो उसे हर वक्त अंदर से बेचैन करे, क्योंकि दिल की सफाई इंसान को सुकून देती है और नफ़रत इंसान को खुद भी थका देती है। जो शख्स किसी के हक़ में अच्छा गुमान रखता है, उसे बग़ैर दलील के बदगुमानी में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शक की बुनियाद पर बनाई गई राय अक्सर इंसान के हकीकत से दूर ले जाती है। लोगों की हर बात को अपने दिल पर न लो, क्योंकि अगर इंसान हर तारीफ़ से खुश और हर तनकीद से टूटने लगे तो वह अपनी ज़िंदगी दूसरों के राय के हवाले कर दिया है। जो शख्स अपनी इज्जत को गलत रास्ते से हासिल करने के बजाय सच्चाई के साथ कायम रखता है, उसने वक्ती फ़ायदे के मुकाबले अपने किरदार की हिफाजत की तरजीह दी। इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऐसे कामों से बचना चाहिए जिन्हें लोगों से छुपाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि साफ़ किरदार इंसान को बहुत सी छुपाने वाली परेशानियों से महफूज रखता है। जो शख्स अपने मालूमात में साफ़ और वाज़ेह रहता है, वह बहुत सी गलतफहमियों से बच जाता है, क्योंकि छुपी हुई बातें गैर वाज़ेह रवैये और लोगों के दरमियान शक पैदा करती हैं। किसी शख्स को सिर्फ़ उसकी एक कमज़ोरी से न परखो, क्योंकि इंसान की शख्सियत में बहुत सी खूबियाँ भी होती हैं, और इंसाफ यह है कि किसी एक की गलती देखकर उसके तमाम अच्छाइयों को भुलाया न जाए। जो शख्स दूसरों की कामयाबी से सबक लेता है, वह हसद में अपना वक्त ज़ाया नहीं करता, क्योंकि समझदार इंसान दूसरों की खूबी को अपने लिए समझने का ज़रिया बना लेता है। अगर किसी इंसान में कोई अच्छी खूबी देखो तो उसे अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरों के अंदर अच्छी सिफ़ात से सीखना इंसान की तरक्की का एक बेहतरीन रास्ता है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों के करीब रहना चाहिए जो उसे गलती पर शर्मिंदा न करें, क्योंकि वह शख्स ज़्यादा फ़ायदे में रहता है जिसे अपनी कमज़ोरियों का इल्म दूसरों की सच्ची नसीहत से भी होता है। किसी इंसान के साथ नेकी करके उसके जवाब में नेकी न मिले तो अपनी भलाई को ज़ाया न समझो, क्योंकि अच्छा अमल अपनी कद्र उस वक्त भी रखता है जब सामने वाला उसकी कद्र न करे। इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऐसे कामों से बचना चाहिए जिनका नुकसान बाद में समझ आए, क्योंकि अक्लमंद वह नहीं जो नुकसान होने के बाद पछताए, बल्कि वह है जो अंजाम को पहले देखकर कदम उठाए। अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ आज की खुशी के लिए न गुजारो, ऐसे अमाल को भी जगह दो जो आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए फ़ायदा, लोगों के लिए भलाई और अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए नेकी का सबब बन सके। जिस शख्स ने अपने वक्त को बेफ़ायदे कामों में ज़ाया होने से बचा लिया, उसने अपनी ज़िंदगी का एक कीमती हिस्सा महफूज कर लिया, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद इंसान चाहे जितनी ख्वाहिश करे उसे वापस नहीं ला सकता। इंसान को किसी काम को शुरू होने पर उसकी कामयाबी का फ़ैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ काम इब्तिदा में मुश्किल दिखाई देते हैं, लेकिन सब्र और दुरुस्त कोशिश के बाद अच्छा नतीजा पैदा करते हैं। जो शख्स अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर डालने की आदत बना लेता है, वह अपनी इस्लाह का रास्ता बंद कर देता है। बेहतर इंसान वह है जो अपनी गलती का हिस्सा खुद पहचाने और उसे दुरुस्त करने की कोशिश करे। अगर किसी काम में तुम्हारी गलती हो जाए तो उसे छुपाने के बजाय उसे दुरुस्त करने की कोशिश करो,
क्योंकि गलती छुपाने से वह ख़त्म नहीं होती बल्कि अक्सर उसका नुकसान मज़ीद बढ़ जाता है। इंसान को अपने काम की तारीफ़ सुनकर इतना मुतमईन नहीं होना चाहिए कि वह अपनी कमज़ोरियों को भूल जाए, क्योंकि तारीफ़ इंसान को खुश कर सकती है लेकिन अपनी इस्लाह ही उसे बेहतर बना सकती है। जिस शख्स ने अपने लिए कोई मकाम हासिल कर लिया हो, उसे उन लोगों को हक़ीर नहीं समझना चाहिए जो अभी रास्ते में हैं, क्योंकि हर इंसान की रफ़्तार मुख्तलिफ होती है और हर कामयाबी के पीछे एक सफ़र होता है। दूसरों की कामयाबी देखकर अपने सफ़र से मायूस न हो, क्योंकि हर इंसान के लिए वक्त, हालात और रास्ता अलग होता है। अपनी कोशिश को दूसरों की रफ़्तार के साथ तौलना हमेशा दुरुस्त नहीं होता। इंसान को अपनी हालात पहचाननी चाहिए, लेकिन उसे अपनी हद भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अपनी ताकत से नावाकिफ़ इंसान कम कोशिश करता है और अपनी हद से बेखबर इंसान बेसोचे ख़तरा मोल लेता है। जिस शख्स ने अपने लिए सही मकसद चुन लिया, उसे रास्ते की छोटी मुश्किलात से घबराकर मंजिल बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल रास्ता गलत रास्ता नहीं होता। इंसान को अपने काम में ऐसी बुनियाद कायम करनी चाहिए जो मुश्किल वक्त में भी कायम रहे, क्योंकि आसान हालात में हर चीज़ दुरुस्त दिखाई देता है, लेकिन असल मजबूती आजमाइश के वक्त सामने आता है। जो शख्स किसी अच्छे काम का इरादा करे, उसे गैर ज़रूरत तौर पर मुअख्खर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से अच्छे इरादे सिर्फ़ इसलिए अमल में नहीं आते कि इंसान उसे हमेशा आने वाले कल पर छोड़ देता है। इंसान को हर मौके पर अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाज़ औक़ात पीछे हट जाना कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि इस बात की अलामत होती है कि इंसान अपने मकसद को बेफ़ायदे झगड़े से ज़्यादा अहम समझता है। जिस शख्स ने अपने लिए सही असूल बना लिए हो, वह बदलते हालात में भी अपनी सिमत नहीं खोता, क्योंकि असल इंसान को उस वक्त सहारा देता है जब हालात फ़ैसला करना मुश्किल बना देता है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ फ़ौरन हासिल करने की कोशिश नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बाज़ चीज़ वक्त के साथ ज़्यादा बेहतर शक्ल में मिलती है और जल्दबाजी इंसान को गलत रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर कर देती है। जो शख्स किसी काम में मुस्तकिल कोशिश करता रहता है, वह मामूली कदमों से भी बड़ी मंजिल तक पहुंच सकता है, क्योंकि मुसलसल चलना अक्सर एक जगह खड़े रहने से बेहतर होता है। अगर किसी काम में रुकावट आ जाए तो सिर्फ रास्ते को बुरा न कहो, पहले यह देखो कि रुकावट तुम्हें क्या सिखा रहा है, क्योंकि कभी मुश्किल इंसान को वह समझ देती है जो आसानी में हासिल नहीं होती। इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए जिनकी कीमत सिर्फ लोगों की नज़र में हो, क्योंकि लोगों की पसंद बदलती रहती है, जबकि हकीकी कद्र इंसान के किरदार और अमल में होती है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ लोगों को खुश करना बना लेता है, वह कभी मुकम्मल सुकून नहीं पा सकता, क्योंकि हर इंसान की पसंद अलग है और सबको एक वक्त में खुश रखना मुमकिन नहीं। इंसान को अपने लिए वह रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिसमें हक़ और भलाई हो, चाहे उस रास्ते पर चलने वाले कम हो, क्योंकि दुरुस्त रास्ते की पहचान लोगों की तादाद से नहीं होती। अगर कोई अच्छा काम करने वाला तुमसे आगे निकल जाए तो उसे अपने लिए शिकस्त न समझो, बल्कि उससे सीखो कि उसने क्या अच्छा किया, क्योंकि दूसरे की कामयाबी से सबक लेना अपनी तरक्की का रास्ता बन सकता है। जो शख्स हर नाकामी के बाद अपनी कोशिश का तरीका बदलने के बजाय सिर्फ किस्मत को इल्ज़ाम देता है, वह अपने लिए सीखने का दरवाज़ा बंद करता है। समझदार इंसान नाकामी से भी कोई सबक हासिल करता है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले करने चाहिए जिन पर बाद में उसे अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा न होना पड़े, क्योंकि लोगों से छुपाई हुई बात भी इंसान अपने दिल से नहीं छुपा सकता। जिस शख्स ने अपने मकसद के साथ इखलास रखा,
वह रास्ते की हर मुश्किल को अपने सफ़र का हिस्सा समझता है, और जो सिर्फ आसानी चाहता है वह मामूली रुकावट पर भी अपनी सिमत बदल देता है। इंसान को अपने आज के फैसले में आने वाले कल को भी शामिल रखना चाहिए, क्योंकि समझदारी सिर्फ मौजूद फ़ायदा देखने का नाम नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल को पहले से समझने का नाम भी है। ज़िंदगी में जो कुछ तुम्हारे अख्तियार में है उसे दुरुस्त करने की कोशिश करो, और जो तुम्हारे अख्तियार से बाहर है उस पर बेहद परेशान न हो, क्योंकि इंसान की ज़िम्मेदारी कोशिश करना है और हर नतीजा उसके अख्तियार में नहीं होता।